Good afternoon, students. Yesterday we discussed about a new topic, that is pollination. That was our topic number 10 in chapter number 2. तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में उनको मैंने अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड किया है. पॉलिनेशन हमारी हेडिंग नंबर 10 है. इस हेडिंग में टोटल 3 सब हेडिंग्स हैं. ए सेल्फ पॉलिनेशन, बी क्रॉस पॉलिनेशन और सी है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन में ये 3 हेडिंग्स हैं. इसमें से हम हेडिंग नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन. द मीनिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन इन डिटेल. सो दिस इज़ आवर टॉपिक नंबर बी, क्रॉस पॉलिनेशन. कल हमने क्रॉस पॉलिनेशन का मीनिंग डिस्कस किया था. सो इन क्रॉस पॉलिनेशन व्हाट हैपन्स, देयर आर 2 different plants genetically dissimilar but of the same species, and pollen grains have to be transferred from anther of one plant to the stigma of another plant. This is what cross pollination is. So for this transfer some एजेंसी इज़ रिक्वायर्ड. अगर पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जाना है तो किसी एजेंट की ज़रूरत है जो पॉलिनेशन को लेकर जाएगा. एंड दैट इज़ आवर फर्स्ट सब टॉपिक टुडे. सो हमारा टॉपिक बी, उसमें जो पहली हेडिंग है द पॉलिनेटिंग एजेंसी, जो हम आज डिस्कस करेंगे कि पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफ़र कौन करेगा. That may be some abiotic, that is non-living factor, for example wind or water, or maybe biotic, that is living factor like insect, bird, bats, snails, etc. So these are the agents which transfer the pollen grains. So accordingly the pollination has been given different names. For example, if the pollen grains are transferred with the help of wind, then that pollination is known as anemophily. So anemophily is pollination with wind, hydrophily pollination with the help of water, and entomophily is pollination with insects, ornithophily with the help of birds, chiropterophily is with the help of bats, and malacophily is with the help of snails. So these are the different agents which help in transferring the pollen grains. We will be discussing about them one by one. So first of all, let us discuss about anemophily. Anemo means wind and philine is to love. That means anemophily is the pollination or the transfer of pollen grains from anther to the stigma with the help of wind. For example, in case of coconut, date yani khajur, maize, grasses. So these are the plants in case of which the pollen grains are transferred with the help of wind. So this is the example. You can see the pollen grains of a maize plant. They are carried with the help of wind. So now we'll be discussing about the characteristics of anemophilous flower. So what is an anemophilous flower? A flower in which pollination is done with the help of wind. So these flowers, they are small and inconspicuous. So small आपको पता है छोटे, inconspicuous means not clearly visible. क्योंकि ये छोटे हैं तो दूर से जो है clearly visible नहीं होंगे. So they are not clearly visible because they don't have to attract insects. तो इसमें कोई भी ऐसा गुण नहीं होगा जिससे कि insects को attract किया जा सके. The non-essential parts of these flowers are absent. Non-essential parts मतलब जो कि reproduction के लिए essential नहीं हैं, ऐसे flowers, ऐसे parts इस flower के या तो नहीं होंगे या फिर reduced होंगे, मतलब जो है वो छोटे होंगे. The flowers are colorless. They don't have any color. They are odorless, means they do not produce any odor or fragrance or smell. कोई भी smell उनमें से produce नहीं करी जाएगी और ना ही वो nectar produce करेंगे. Nectarless because they don't have to attract insects. If the flower is unisexual, that means कि अगर एक plant में सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं या एक फ्लावर मेल है एक फ्लावर फीमेल है, मतलब एक फ्लावर में
दोनों ऑर्गन्स नहीं हैं, ऐसे फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं, तो ऐसे केसेस में जो मेल फ्लावर्स की गिनती होगी वो ज़्यादा होगी, बिकॉज मोर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड. एंड इफ़ it has both the organs, that means if the flower is bisexual, that means if it has both the stamen and the pistil, in that case the stamen are numerous, stamen की गिनती ज़्यादा होगी, again for more production of pollen grains. and the pistil is uni-ovuled, मतलब pistil में एक ही ओव्यूल होगा. फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड अबव द फोलिएज, मतलब फ्लावर जो है एक ब्रांच में बाकी पार्ट्स में ऊपर ऊपर जो है वो प्रोड्यूस होंगे, बाहर को निकले होंगे फ्लावर्स. और उस फ्लावर में भी जो उसके मेल और फीमेल पार्ट्स हैं, दैट मीन्स द स्टिग्मा, द एंथर, दे विल बी एक्सर्टेड, मतलब बाहर को निकले होंगे पार्ट्स. ये जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं बाहर को निकले होंगे ताकि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो हवा से कैरी करे जा, मतलब वो बाहर हवा की तरफ एक्सपोज होंगे, सो दैट पोलन ग्रेन्स कैन बी कैरिड विद एयर एंड दे कैन बी डिपॉजिटेड on the stigma. So these parts, they are not hidden inside the flower, they are exerted outside. Anthers are versatile. So now what do you mean by a versatile anther? It means that an anther, suppose ये anther है, in a versatile anther the filament of the anther is attached at the middle, ये middle में attached है, मतलब जो ये anther है वो swing कर सकता है wind के साथ. अगर ये इस तरह से होता, मान लो ये अगर एंथर है और ये नीचे फिलामेंट है, तो ऐसा बेसी फिक्स्ड एंथर होता है. ये एंथर ये एनिमोफिलस फ्लावर में नहीं मिलता जनरली. कौन सा एंथर मिलता है? इस टाइप का, यानी वर्सेटाइल, सो दैट इट कैन स्विंग विद द विंड एंड द पोलन ग्रेन्स कैन बी कैरीड. नेक्स्ट, द फ्लावर्स, द एंथर्स, दे बर्स्ट सडनली टू थ्रो द पोलन ग्रेन्स. तो बहुत ही फोर्स के साथ पोलन ग्रेन्स जो हैं वो जो है फैलेंगे और एयर या विंड के साथ दे विल बी कैरीड. द पोलन ग्रेन्स टू बी कैरीड विद द हेल्प ऑफ विंड, दे शुड बी लाइट, हल्के होंगे ताकि वो हवा में बह सकें. वो स्मॉल होंगे, वो विंग्ड होंगे, उन पे विंग्स लगे होंगे या डस्ट की तरह हल्के से होंगे ताकि वो विंड के साथ कैरी किए जाए. एंड दे कैन बी कैरीड बाय विंड up to a distance of 1300 kilometer even. And the pollen grains also should be dry and non-sticky, unwettable. Why dry? So that they don't, dry and non-sticky because they should not go and stick to some other place. क्योंकि अगर वो कहीं और स्टिक हो गए किसी पत्ते पे, किसी जो भी विंड में रास्ते में जो भी आएगी, अगर उस सरफेस पे वो स्टिक हो गए तो वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे. सो दे शुड बी ड्राई, नॉन स्टिकी एंड अनवेटेबल, मतलब अगर वो भीग जाएं तो वो कहीं ख़राब ना हो, गल ना जाए. उनके ऊपर ऐसी कवरिंग होती है जो उनको वेट होके गलने नहीं देती, दैट इज़ अनवेटेबल. स्टिग्मा के क्या कैरेक्टर्स होंगे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में? स्टिग्मा हैज़ टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स, सो इट शुड हैव कैरेक्टर्स टू हेल्प इट टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स. सो व्हाट आर दोज कैरेक्टर? इट इज़ हेयरी बाल जैसे स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर होंगे ताकि उसमें पोलन ग्रेन्स आके ट्रैप हो जाएं. या फेदरी, ये फेदर्स जो हैं वो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने में हेल्प करेंगे. एज यू कैन सी हेयर, फेदरी टाइप का जो है स्टिग्मा है. एंड इट मे बी ब्रांच्ड, यहाँ पे आपको ब्रांचिंग भी दिख रही है, तो जो इस तरह की ब्रांचिंग है. सो दीज कैरेक्टर्स हेल्प द स्टिग्मा टू कैच द पोलन ग्रेन्स. एंड next point is anemophily is highly wasteful. Why is it written so? Because in anemophily the flower, it has to produce a lot of pollen grains. These pollen grains, they are carried by the wind, and in the way many of them are wasted because it is non-directional. Wind can be blowing in any direction, so the pollen grains, they can be scattered in different directions and they will not reach the stigma. Many of them are wasted. That is why pollen grains are produced in large numbers, so that even if many of them are wasted, even then some of them should reach the stigma. That is why they are produced in a large number. And because of this, there is a problem also. When pollen grains, they are released in large number, they are released in the air, a large area is covered with pollen grains, so it goes into human respiratory system with air, and that causes allergy of our bronchi, of our respiratory system, and this type of allergy is known as hay fever. तो अगर पोलन ग्रेन से एलर्जी है, सांस के रास्ते से पोलन ग्रेन चला जाए, तो दैट इज़ hay fever.
Now the second type is hydrophily. Hydrophily is the pollination with the help of water. So water pollination is known as hydrophily, and this is the mode of pollination in which the pollen grains are transferred with the help of water. So what are the characteristics of such flowers which are pollinated with the help of water? The flowers, they are small and inconspicuous, again because inconspicuous means they are not visible from a distance, दिखते नहीं ज़्यादा दूर से क्योंकि वो छोटे हैं. And this character is there because they don't have to attract the insects. Perianth, as you already know, sepals and petals and other floral parts are unwettable. So this unwettable one is a common characteristic found in hydrophilous flowers. Unwettable मतलब कहीं जो इन फ्लावर के पार्ट्स के ऊपर जो है कवरिंग होती है म्यूसिलेज की, ताकि जो है फ्लावर गल ना जाए, कहीं उसके पार्ट्स गल ना जाए. दे आर नॉट अफेक्टेड विद वाटर, सो दैट इज़ व्हाट अनवेटेबल मीन्स. Nectar and odor are absent because they don't have to attract the insects. Pollen grains, they are light so that they can be carried with water. They are unwettable. And why they are unwettable? Because they are covered with the mucilage covering. Stigma, the female part, is long because so that it can reach the pollen grains wherever they are present in the water. The stigma should be sticky so that the pollen grains stick to it, and it is unwettable, not affected by water. Hydrophily, it is seen in many plants. For example, in case of Vallisneria, Zostera, Ceratophyllum, these are the plants in which the flowers are inside water. But there are some aquatic plants in which the flowers are emergent. मतलब वो प्लांट तो एक्वेटिक है, प्लांट पानी में है, लेकिन फ्लावर्स बाहर विंड को एक्सपोज्ड हैं. In those cases the pollination takes place with the help of wind or insects. वहाँ पे पानी में रहने के बावजूद जो pollination है वो wind से होगी, क्योंकि flowers जो है वो बाहर हैं, पानी के अंदर नहीं हैं. For example, lotus, water lily and water hyacinth. In these cases the pollination is done with the help of wind, that is anemophily, or insects, entomophily. Now hydrophily, that means pollination with water. It is of two types. It is hypohydrophily and एपीहाइड्रोफिली. what is this hypohydrophily? हाइपो आपको पता है कि कम या नीचे. सो यहाँ पर hypohydrophily means below the surface of water. so hypohydrophily it will occur below the surface of water, मतलब जो फ्लावर है वो पानी के सरफेस से नीचे है. For example, in case of Ceratophyllum, we will be discussing how it happens. And another is एपीहाइड्रोफिली. एपीहाइड्रोफिली मतलब ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब कि पानी की सरफेस के ऊपर. तो दो तरह के यहाँ पे केसेस हो गए. मान लो दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर. इफ पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस बिलो इट, दैट मीन्स अंडर वाटर, देन इट इज hypohydrophily. And if it is taking place at the surface of water, then it is एपीहाइड्रोफिली. we'll be taking an example of both of these. so first one is Ceratophyllum. it is a plant which is submerged, मतलब पानी के अंदर है ये प्लांट, और यहाँ पर पॉलिनेशन भी पानी के सरफेस के अंदर ही हो रही है. ये कैसे हो रही है? द एंथर्स, दे डिहाइस एंथर्स रप्चर होंगे, ब्रेक होंगे, और कहाँ पर होंगे? जहाँ ये पानी में एकदम पानी की सतह से नीचे नीचे जस्ट नीचे यहाँ पर जो एंथर्स हैं, दे विल dehisce, they will break and pollen grains will be released in water. These pollen grains will sink. ये नीचे डूबेंगे, और जब ये सिंक होंगे तो वहाँ पर वो फीमेल फ्लावर्स के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे. सो दिस विल ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन. सो दिस इज हाउ the hypohydrophily in Ceratophyllum is done. The pollen grains, they sink and then they land on the stigma. Vallisneria is example of एपीहाइड्रोफिली. here you will see the it is also submerged. plant पानी के नीचे है, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है. this is the surface of water. surface of water के नीचे यहाँ पे plant है. there is a male plant and there is a female plant. मतलब मेल और फीमेल प्लांट अलग है. that means it is a dioecious. di means two, echious means bodies. so you will see two, a male plant
एंड अ फीमेल प्लांट। डाइशियस और यूनिसेक्सुअल एक ही बात है, मतलब एक प्लांट में एक ही सेक्स ऑर्गन है, मेल अलग और फीमेल अलग। सो व्हाट हैपन्स हियर इज that the male plant, this one is a male plant, the flowers are male flowers, these are the male flowers, sorry not this one, male flower, this one, this is a male flower, it is abscised from the plant, मतलब plant से मेल फ्लावर अलग हो गया है, टूट गया है और पानी के सरफेस पे पहुंच गया। नाउ दिस इज़ अ फीमेल प्लांट, साइड में जो है ये फीमेल प्लांट है, मेल फ्लावर यहाँ पर ऊपर है और फीमेल जो फ्लावर है वो नीचे है, प्लांट के साथ फिक्स्ड है। सो यू कैन सी हेयर, यहाँ पर जो ये फ्लावर की जो स्टॉक है, डंडी है, वो कॉइल्ड है। सो व्हाट हैपन्स, दिस कॉइलिंग इज़ अनकॉइल्ड, ये अनकॉइल होगा और ये जो ब्रांच है फ्लावर वाली ये ऊपर तक आ जाएगी। स्टिग्मा विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर, the pollen grains are released on the stigma and then again this branch will coil and the female flower it will be pulled inside। तो मतलब मेल फ्लावर्स ऊपर सरफेस पे है, फीमेल फ्लावर की जो स्टॉक है वो अनकॉइल होगी, फीमेल फ्लावर जो सरफेस तक पहुंचेगा, पोलन ग्रेन रिसीव करेगा, वापस कॉइलिंग के साथ ये फीमेल फ्लावर पानी के अंदर पहुंच जाएगा। सो दिस इज सीन इन द केस ऑफ Vallisneria। नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप, वी वर डिस्कसिंग द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसको मैंने नंबर 1 दिया था बी हेडिंग में, यानी बी हेडिंग थी हमारी क्रॉस पॉलिनेशन, उसका पहला पॉइंट था एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, उसकी ए हेडिंग थी एनिमोफिली, बी थी हाइड्रोफिली एंड सी हेडिंग द थर्ड एजेंट इज एनिमल। सो द pollination with the help of animals is known as zoophily. Zoo means animal and phily means to love. So zoophily is the pollination with the help of animals. So those animals, they may be bees, birds, bats, snails, etc., as we have already discussed, and most commonly they are bees and butterflies। मतलब ज़्यादातर ये इंसेक्ट होते हैं, बी एंड बटरफ्लाई दोनों इंसेक्ट हैं, तो ज़्यादा केसेस में हमें पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के हेल्प से मिलेगी। सो हमारी जो ये सी हेडिंग है जूओफिली, उसमें मैंने एक सब हेडिंग बनाई है एंटोमोफिली। इट इज़ अ टाइप ऑफ जूओफिली बिकॉज insects they are also, they are animals। So entomophily is a type of zoophily। entomophily is pollination with the help of insects। अगर insects pollination कर रहे हैं जैसे bee, butterfly, wasp, beetles, moth, ये सब अगर pollination कर रहे हैं तो that is entomophily। now we'll be discussing the character। before that, why do these insects have to do pollination? उनको क्या ज़रूरत है pollination करने की? they are getting some reward from the flower। उनको फ्लावर से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है जिसको लेने के लिए वो फ्लावर तक जा रहे हैं। what that reward is, that is either nectar, एक जूसी सिक्रीशन है प्लांट में, उसको लेने के लिए वो फ्लावर तक जा रहे हैं, और द पोलन ग्रेन्स दे आर एडिबल। एडिबल मीन्स दे कैन बी ईटन, so they are going there to eat the pollen grains, or the insects are visiting the flower to get shelter or place to lay eggs। तो वहाँ पर रहने के लिए या eggs lay करने की जगह के लिए वो flower को visit कर रहे हैं। so these rewards are either nectar, pollen grains, shelter or place for laying eggs। for these 4 reasons the insects they visit the flowers। and which insect is most commonly seen to do pollination? bees। तो वो इंसेक्ट एंटोमोफिली में सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट देखा गया है नियरली 80% केसेस में, दैट इज़ बी। एंड द बीज दे विजिट the flower to get nectar and pollen grains, and they have some pollen baskets in their legs in which the pollens are collected। now what are the characters of these flowers so that they can attract the insects? they have colored flowers। तो जो कलर है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का, एंड दैट कलर इज़ ऑल्सो फिक्स्ड, दैट विच कलर अट्रैक्ट्स विच टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मॉथ जो है बटरफ्लाई की तरह ही दिखेगा, ब्राउन से कलर का होगा, थोड़ा सा मोटा होगा उससे। सो दैट मॉथ इट इज़ एन इंसेक्ट, इट विजिट्स
द फ्लावर्स हैविंग अ वाइटिश टोन, तो वाइटिश कलर के फ्लावर्स में मॉथ जो है वो विजिट करेंगे। बटरफ्लाइज एंड वास्प दे अट्रैक्ट रेडिश फ्लावर्स। बी it is attracted towards blue, purple, violet and yellow flowers. So these are the colors to which these insects are attracted. Now what are the characters of entomophilous flowers? Entomophilous flower means the flowers which are pollinated with insects. These flowers, they are brightly colored to attract the insects. If generally they are conspicuous, that means they are visible, बड़े साइज के हैं, दूर से visible होंगे. And if by chance they are small, then how do they become visible? वो कैसे दिखेंगे? by their grouping. वो एक ग्रुप बना लेंगे, इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे और उसके कारण वो दूर से इंसेक्ट्स को विजिबल होंगे. एंड इफ़ देयर पार्ट्स आर नॉट कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब अगर फ्लावर के पेटल्स जो हैं वो लार्ज नहीं है, वो दिख नहीं रहे, तो बाकी पार्ट्स एनलार्ज हो जाएंगे, शोई हो जाएंगे. शोई मीन्स दूर से दिखेंगे. ऐसे कौन से पार्ट्स हैं? लाइक ब्रैक्ट. नाउ व्हाट इज ब्रैक्ट? फ्लावर्स में जो नीचे कवर होता है, सेपल्स के भी नीचे, विच कवर्स द फ्लावर इन द बड स्टेज, दैट ब्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बुगेनविलिया, दैट ब्रैक्ट, इंस्टेड ऑफ पेटल्स द ब्रैक्ट इज विजिबल. स्टेमन इन केस ऑफ मिमोसा, मिमोसा प्लांट में स्टेमन एनलार्ज होते हैं. अकेशिया में भी स्टेमन एनलार्ज होंगे और ये जो हैं ये इंसेक्ट्स को दूर से विजिबल होंगे. These flowers, they have a landing platform for the insects to land. The flowers, some flowers have some peculiar structure. उनके structure में कुछ खास होता है ताकि वो insects को जो है pollinate करने के लिए suitable हो सके. For example, there is a flower known as snapdragon. एंटीराइनम उसका साइंटिफिक नेम है. इसके जो फ्लावर्स हैं वो बाइलेबिएट है, मतलब जैसे बाई मीन्स टू, लेबिएट मतलब लिप्स, दो लिप्स की तरह उसका स्ट्रक्चर है ताकि जो इंसेक्ट जो है उस पर लैंड कर सकें. इन सम प्लांट्स देयर इज़ कोरोला ट्यूब. कोरोला आपको पता है, इट इज़ अ व्हर्ल ऑफ द फ्लावर, पेटल्स की बनी हुई है. तो वो इस तरह से अरेंज है कि एक तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें थोड़ी सी अलग टाइप के टंग वाले जो इंसेक्ट्स हैं, जिनकी टंग अलग तरह की है, वो इंसेक्ट्स जो है इस कोरोला ट्यूब के अंदर जो है वो नेक्टर कलेक्ट कर सके. So these are some examples in which the flowers have special structures to attract the insects. Now in some cases the flowers, they have special markings on them. flowers के petals पे markings होती हैं and these markings they act like guides to guide the insect to nectar gland. तो petal से लेके nectar gland तक marks होते हैं. इंसेक्ट उस मार्क को फॉलो करके नेक्टर ग्लैंड तक पहुंच जाता है. एग्जाम्पल है वायला. यू कैन सी दीज एग्जाम्पल्स विच आई हैव रिटन हेयर, स्नैपड्रैगन, वायला, या इससे पहले भी जो एग्जाम्पल्स है आप इनके पिक्चर्स जो हैं वो गूगल पे देख सकते हैं. इतनी सारी पिक्चर्स इंसर्ट करना यहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता और ये नोट्स की लेंथ भी बढ़ जाती. सो आई हैव नॉट इंसर्टेड दोज पिक्चर्स. Now what is special about these marks? Sometimes these marks which are there on the petals, they reflect UV rays, ultraviolet rays reflect होती है इन marks से, and the bees can recognize those UV rays and they can reach the petals. They can follow the marks to reach the nectar glands and in return they pollinate the flower. Now next important characteristic of such flowers is that they produce an odor. इन flowers में से एक odor या smell आती है जिससे insects attract होते हैं. that odor may be pleasant, तो वो खुशबूदार, अच्छी खुशबू वाला हो सकता है जो स्मेल, या कई बार वो odor जो है वो फाउल हो सकता है, मतलब बैड स्मेलिंग odor हो सकता है. so these foul smell, it attracts flies and beetles. and फॉर एग्जाम्पल रेफ्लेशिया एक फ्लावर है, तो ये फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है. दिस फाउल स्मेल हेल्प्स टू अट्रैक्ट कैरियन फ्लाइज. कैरियन फ्लाइज के लिए जो कि रेफ्लेशिया को पॉलिनेट करेंगी, उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है. नेक्टर विच इज़ अ रिवार्ड, सो दैट नेक्टर इज सिक्रेटेड इन दीज फ्लावर्स सो दैट द इंसेक्ट्स दे विजिट द फ्लावर. पोलन्स आर एडिबल इन सम केसेस, एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, मतलब पोलन्स खाने के लिए इंसेक्ट वहाँ पे विजिट करेंगे. द स्टेमन्स आर यूजुअली इंसर्टेड, मतलब स्टेमन जो हैं वो फ्लावर में
बाहर की तरफ नहीं निकले होंगे, वो फ्लावर में अंदर अंदर होंगे। जैसे मैंने विंड पॉलिनेटेड में बताया था कि जो स्टेमन है वो एक्सर्टेड है, वो बाहर को निकले हुए हैं। यहाँ पे स्टेमन जो है वो इंसर्टेड है, अंदर की तरफ है, और स्टिग्मा जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब ऐसे क्यों है? ताकि कोई जो इंसेक्ट आ रहा है वो दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन लेकर आ रहा है, तो वो यहाँ पर लैंड करे, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प होगी। इसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि जो ये स्टिग्मा है ये बाहर की तरफ है और जो ये स्टेमन है वो अंदर इंसर्टेड है। बट देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिमोसा प्लांट में जो स्टेमन है वो जो है एनलार्ज्ड है, बिकॉज उसमें जो पेटल्स हैं वो छोटे हैं, तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मिमोसा में स्टेमन इज एनलार्ज्ड एंड इट इज़ एक्सर्टेड, अदरवाइज यूजुअली द स्टेमन्स आर इंसर्टेड। नाउ पोलन ग्रेन्स में क्या कैरेक्टर होगा? दे आर स्पाइनी कांटेदार होंगे ताकि वो इंसेक्ट के पैरों में चिपक जाएं, वो हैवी होंगे, एंड दे आर सराउंडेड बाय अ येलो स्टिकी सब्सटेंस सो दैट दे स्टिक, and that yellow sticky substance is known as pollen kit. With the help of this they stick to the legs of the insect. The stigma is exposed. Stigma जैसे मैंने बताया बाहर की तरफ exposed होगा so that it receives the pollen grains from another plant and it is sticky. Now some flowers they provide safe place to insect for laying eggs. So एक ये कैरेक्टर है कुछ प्लांट्स में, सभी में नहीं, कि उनके फ्लावर जो हैं वो एक ऐसी प्लेस प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स को कि वहाँ उस प्लेस में वो इंसेक्ट अपने एग्स ले कर सकें। दैट इज़ वाई द इंसेक्ट्स दे विजिट दोज फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल द yucca plant and amorphophallus plant, these flowers they give a place to lay eggs to the insect. तो मतलब इन फ्लावर्स में इंसेक्ट एग्स ले करने के लिए आते हैं, इन yucca and amorphophallus. And another thing about amorphophallus is the tallest flower, 6 feet tall जो है इसका फ्लावर होगा। यू कैन सी इट ऑन द गूगल साइट। जो amorphophallus है उसका फ्लावर बहुत ज़्यादा बड़ा है, 6 feet almost. So these two flowers they give place to the insects to lay eggs. So these were the characteristics of entomophilous flowers. We'll be discussing about the second topic in this, जो entomophily में second topic है हमारा, उसकी बात हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।